Hello and very warm welcome to all my lovely Smartians. How are you doing? I really hope you are fit and fine. Today in this video, I'll be dealing with the chapter Microbes in Human Welfare from class 12th. Though the weightage of this chapter in NEET is less, but still, even if you are asked one or two questions, they are very scoring, so we cannot even neglect this chapter. In this chapter, we'll be dealing with the importance of microbes in our life. We know that many microbes are responsible for many diseases, but apart from those, there are many other microbes which are really useful to us in different aspects of our life. For example, some microbes are used in food industries, जैसे alcohol production. Some microbes are used in medicine industry for production of antibiotics medicines. Some microbes are useful in sewage treatment. Some microbes are used as fertilizers. So we will see all these aspects of the usage of microbes in our life in this chapter. Before dealing with how these microbes are useful in different sectors, we should first know what microbes are. So as their name suggests, microbes means microscopic. So microbes are microscopic organisms, one which cannot be seen through naked eyes. These can be bacteria, microscopic protists, algae or fungi. They are important component of the biotic component or the system on the earth. हमारे अर्थ पर एबायोटिक यानी नॉन लिविंग और बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. उस लिविंग कंपोनेंट का एक मेजर कंपोनेंट कौन है या पार्ट कौन है? माइक्रोब्स. सो दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ. Now the next question comes, where are these microbes found? हमें मिलते कहाँ हैं? अभी भी आपके आसपास बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप देख नहीं सकते, बट दे आर एवरीवेयर. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन है जो हर जगह पाए जाते हैं. वी कैन फाइंड देम एवरीवेयर इन द सॉइल, वाटर, एयर. इनसाइड आवर बॉडीज़, हमारे अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और कुछ माइक्रोब्स बहुत यूज़फुल हैं हमारी बॉडी में. जैसे हमारे गट की हेल्थ के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी के अंदर भी. माइक्रोब्स आर इवन फाउंड इन द हैबिटेट्स जहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म शायद रह भी नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल हैव लर्नड in your chapter biological classification that archaebacteria, they are found in harsh or the extreme conditions. So even in the extreme habitats, like where the temperature is really high or really low, or where the pH is really high, alkaline or very acidic, वहाँ पे शायद कोई और ऑर्गेनिज्म ना मिले बट माइक्रोब्स ज़रूर मिलेंगे. सो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, डीप इनसाइड गीजर्स और थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर इज 140 डिग्री सेल्सियस. कोई और ऑर्गेनिज्म यहाँ रह ही नहीं सकता, बट कुछ माइक्रोब्स जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव. Deep in the soil where the condition become a little anaerobic, under the layers of snow and even in the highly acidic environment, microbes can be found. ठीक है. सो थर्मल वेंट्स में जहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे भी माइक्रोब्स मिल सकते हैं. देन डीप इन द सॉइल लेयर्स वी कैन फाइंड द माइक्रोब्स. इवन इन द लेयर्स ऑफ स्नो जहाँ और कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, माइक्रोब्स हो सकते हैं. देन माइक्रोब्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑल्सो, these include certain protozoans. Protozoan is one of the class of protist. They are primitive relatives of animal. Then bacteria, some fungi and microscopic viruses, viroids, also the prions. Prions are abnormal proteins
that cause infections of the central nervous system. तो वो सब आएंगे, प्रोटोजोन्स आएंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, वी हैव विरोइड्स, प्रायॉन्स, ये सब इसमें आएगा. Microbes like bacteria and fungi can also be grown in labs on some nutritive medium. अगर हम labs में nutrition medium बनाएं, उनको हम lab में grow कर सकते हैं to form colonies that can be seen with the naked eye. हर एक माइक्रोब बैक्टीरिया को तो आप नहीं देख सकते, बट उनकी कॉलोनियल फॉर्म को देख सकते हो. तो ऐसे कल्चर प्लेट्स में हम न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं अगार का, और उसमें फिर कुछ टाइम बाद कॉलोनीज ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि आसपास इतने माइक्रोब्स हैं, वो उस न्यूट्रिएंट मीडियम में अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है, वो डिवाइड करते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं. कॉलोनीज को आप देख सकते हो. अब ये कॉलोनीज बनाने से फ़ायदा क्या होगा? इन कॉलोनीज से हम बहुत सारी स्टडीज़ कर सकते हैं. सो सच कल्चर्स आर यूजफुल टू स्टडी दी माइक्रोब्स, हाउ दे वर्क, उनका फिजियोलॉजी, कैसे हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. अपने यूज़ के लिए हम ये कल्चर्स लगा के पढ़ सकते हैं. सो माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज. नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट part of the chapter, let's first assess our knowledge. Proteinaceous infectious agents are, before I give you option, pause the video and let me know the answer. Bacteria, prions, viroids, PPLO. So as we did, these are prions. Next, now we will be dealing with the uses of microbes in different sectors. जैसे सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोब्स का यूज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में. घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माइक्रोब्स की मदद से बनाई जाती हैं? कैन यू थिंक ऑफ सम एंड लेट मी नो. जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला. सो ऑल दीज प्रोडक्शन और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रिक्वायर यूज़ ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स. जैसे हम यीस्ट यूज़ करते हैं, राइट, टू मेक द डो. तो ये सब में माइक्रोब ही तो यूज़ हो रहा है. यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फंजाई. सो माइक्रोब्स का यूज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? लेट्स सी वन बाय वन. यूज माइक्रोब्स और देयर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोब्स एवरी डे. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं और वो माइक्रोब्स की मदद से ही बनाए जाते हैं. वन वेरी कॉमन इज़ कर्ड फॉर्मेशन. जो घर में दही जमाई जाती है या कर्ड फॉर्मेशन किया जाता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो कर्ड कैसे बनती है? बाय कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, एंड दिस मिल्क प्रोटीन कोगुलेशन इज कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB इन शॉर्ट. तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क के प्रोटीन्स को कोगुलेट करते हैं और कर्ड का फॉर्मेशन होता है. सो वन एग्जांपल इज प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. कर्ड का बनाना मिल्क से, वो भी क्या है? एक माइक्रोब्स को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into the curd. During the growth, जब कर्ड बनता है तो उसमें क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए वो जो मिल्क है वो एक न्यूट्रिशन का सोर्स है. तो दे गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट और वो उसमें ग्रो करते हैं. आप ऐसे भी, मतलब स्टार्टिंग से करें तो ऐसे हो सकता है, बट अगर आपने देखा हो या ऑब्जर्व किया हो, योर मदर से टू कीप स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड सो दैट दे कैन यूज़ इट एज इनोक्यूलम और स्टार्टर, जो वो मिल्क में ऐड कर देती हैं ताकि कर्ड जल्दी बन सके. तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है उसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पहले से ही हैं. जब उसको एक इनोक्यूलम या स्टार्टर की तरह आपके मिल्क में डाला जाता है तो आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ LAB पहले से है. वो मिल्क उसके लिए न्यूट्रिशन का सोर्स है और वो उससे मल्टीप्लाई होंगे. अब जब वो मल्टीप्लाई या ग्रो करेंगे तो ड्यूरिंग दैट ग्रोथ द LAB इज गोइंग टू प्रोड्यूस एसिड्स that will help in coagulation, जैसे मैंने कहा मिल्क प्रोटीन का, as well as they will partially digest the milk protein.
Not only this, beta, LAB also help in increasing the vitamin B12 content in the curd. So ये देखो, small amount of curd which act as inoculum or the starter. ठीक है, यानी जिसमें ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ LAB प्रेजेंट है, उसको फ्रेश मिल्क के साथ कंबाइन करते हैं. ऐसे थोड़ा सा दही लिया, मिल्क में डाला और एक सूटेबल टेम्परेचर पर, क्योंकि माइक्रोब्स स्पेसिफिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई दे प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, तो उसको थोड़े वार्म टेम्परेचर पर रख देते हैं और कर्ड का फॉर्मेशन शुरू होता है. कैसे? कोएगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन से. Even these LAB help in improving the nutritional quality. कैसे? By increasing the vitamin B12 content. So curd is really good for gut health because it is rich in LABs. और LAB आपकी गट की हेल्थ को भी चेक करते हैं. So LAB even has this property. In our stomach, LAB plays an important role in checking the disease causing microbes. तो जो disease causing microbes हैं उनको किल करने में ये हेल्प भी करता है. इसलिए कर्ड आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्दी है. देन हैव यू हर्ड ऑफ प्रोबायोटिक्स? जैसे कि एक याकुल्ट आता है, तो कभी आपने उस याकुल्ट पे अगर अब तक ऑब्जर्व नहीं किया है, अब ऑब्जर्व करिएगा, उसकी बॉटल पर लिखा होता है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो प्रोबायोटिक्स, दैट्स अ प्रोबायोटिक ड्रिंक. यू मस्ट हैव सीन इट्स एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, जिसमें वो प्रोबायोटिक्स बोलते हैं. तो प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? दे आर बेसिकली फ्रेंडली बैक्टीरिया विच आर गुड फॉर योर गट, है ना. उन्हीं का ही एक तरीके से ड्रिंक होता है जिसमें वो बैक्टीरिया होते हैं. सो प्रोबायोटिक्स आर फ्रेंडली बैक्टीरिया जो आपकी गट के लिए अच्छे हैं, यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ. जो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी काम आता है, आपकी हेल्थ के लिए भी. करेक्ट. वन एग्जाम्पल इज याकुल्ट. देन the dough which is used for making food such as dosa, idli is fermented by bacteria. तो ये अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो आप इडली डोसा खाते हैं उसका जो डो है वो भी बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंटेशन से बनाया जाता है. और जो एक पफ्ड अप अपीयरेंस आप देखते हो वो किसकी वजह से है? CO2 गैस प्रोडक्शन. क्योंकि जब वो ग्रो करते हैं तो दे डू एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, जिससे CO2 का प्रोडक्शन होता है. देन द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड. ब्रेड के लिए जो डो यूज होता है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है यूजिंग बेकर्स यीस्ट, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं और ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये बेकरी और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है. बेकरी इंडस्ट्री में जैसे अभी बताया, जितने भी ब्रेड्स और ये जो मफिन्स वगैरह होती हैं, इसके डो को फर्मेंट किया जाता है यीस्ट डालकर. इसी तरीके से सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. सो अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स and food are also made by fermentation process, and that fermentation is done by the microbes only. टोडी, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिंक टोडी की, तो दिस इज़ अ वेरी फेमस ड्रिंक इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया. ठीक है. अब ये टोडी ड्रिंक कैसे बनाया जाता है? बाय फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम द पाम. जो पाम्स होते हैं उनका सैप लेते हैं. सैप इज़ बेसिकली यू कैन से द सॉल्यूशन ऑफ जाइलम और द फ्लोएम, एंड दैट इज़ बीइंग फर्मेंटेड. फर्मेंटेशन करके ये ड्रिंक बनाई जाती है. तो इसमें कुछ अल्कोहलिक कंटेंट भी होता है बट वेरी लेस, एंड इट इज़ गुड इवन फॉर द किडनी स्टोन्स के लिए भी अच्छी मानी जाती है. देन माइक्रोब्स आर इवन यूज टू फर्मेंट fish, soyabean and bamboo shoots to make the different types of foods out of it. So fermentation process जो हम day to day life में करते हैं
वो माइक्रोब्स की मदद से ही करते हैं। और फर्मेंटेशन एक तरीके का वी कैन से इट्स एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। आप सब ने चीज़ खाया है। चीज़ आप अवेलेबल इन द मार्केट इन डिफरेंट फ्लेवर्स एंड इन डिफरेंट कलर्स एज वेल। तो जो उसका टेक्सचर है, जो फ्लेवर है, वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोब दैट इज़ यूज्ड टू फर्मेंट इट, राइट। सो बहुत सारे माइक्रोब्स चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor, taste and the specificity coming from the microbes used। ये statement base में लाइन आ चुकी है, आपकी बुक की लाइन है कि कौन कौन से फीचर्स चीज़ के डिपेंड करते हैं ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोब बीइंग यूज। तो जो चीज़ का टेक्सचर होता है, जो फ्लेवर होता है और जो टेस्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ को बनाने के लिए आपने कौन सा माइक्रोब यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल मस्ट हैव सीन दिस स्विस चीज़, स्पेसिफिकली इन टॉम एंड जेरी कार्टून, राइट। तो इस स्विस चीज़ में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इज़ द प्रेजेंस ऑफ दीज होल्स, है ना, ये जो बड़े बड़े होल्स होते हैं। तो दिस चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड by using bacteria Propionibacterium sharmani। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन अगर आ भी रहे हैं तो जनरली इट इज़ मैच द फॉलोइंग, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। ऑलमोस्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग एंड इट्स डन। तो वो मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपको बहुत कुछ याद करना है। जैसे स्विस चीज़ का प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, बाय द बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी। और इस चीज़ में ये जो होल्स हैं दे आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। और ये CO2 किसने प्रोड्यूस किया, जब इसको बनाया गया, फर्मेंट किया गया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शारमानी। देन एक रॉकफोर्ट चीज़ होती है, दिस इज स्पेसिफिकली फेमस इन फ्रांस। तो दिस चीज़ इज़ कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक ब्लू लाइंस और इसका एक टैंगी फ्लेवर होता है। तो ये जो ब्लू लाइंस हैं या टैंगी फ्लेवर है, दिस इज़ बिकॉज दिस चीज़ इज़ राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन इट, जिसकी वजह से इसको ये स्पेसिफिक कलर मिलता है। और वो फंजाई जनरली पेनिसिलम रॉकफोर्टाई होती है, इसलिए नाम पड़ा है रॉकफोर्ट चीज़। सो दिस इज़ ripened by growing a specific fungi। तो जो स्विस चीज़ है वो बैक्टीरिया की उससे बनाई गई है, जबकि ये फंजाई से, दैट गिव्स अ पर्टिकुलर फ्लेवर। नाउ लेट्स चेक आवर नॉलेज कि जो भी अब तक हमने पढ़ा वो आपको आया कि नहीं। विच माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। सो कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस इज बीइंग यूज्ड। सो द करेक्ट आंसर इज lactobacillus। Next, the puffed up appearance of dough is due to the result of which gas production? CO2 gas. So option 3 is correct. The dough which is used for making bread is fermented. Now the next part is use of microbes in industrial products। Industries level पर हम microbes को कैसे use करते हैं वो अब हम इस सेक्शन में देखेंगे। So microbes are used to synthesize a number of useful products even in the industries, and these products hold a very important significance to human life। जैसे कि we have antibiotics जो microbes के use से बनाई जाती है। Many beverages are produced with the use of microbes। The growth of microbes at the industrial level requires special vessels, big vessels called fermenters। तो माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आपको ग्रो करना है, क्योंकि एक लार्ज नंबर में ग्रो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे को बड़े बड़े वेसल्स चाहिए होते हैं जिसमें आप बैक्टीरियल कल्चर्स लगाते हैं। और वो बड़े बड़े वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज लार्ज वेसल्स आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें, फर्मेंटर्स, जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है।
देन सबसे पहले माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रियल स्केल पर है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस और ड्रिंक्स। इसमें माइक्रोब्स जो हैं वो यूज किए जाएंगे और स्पेसिफिकली जो माइक्रोब ड्रिंक्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं दे आर यीस्ट। यीस्ट, यूनिसेलुलर यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हमने बेकर्स यीस्ट भी कहा था क्योंकि वो बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स, ब्रेड्स, हमने देखा था। सिमिलरली वही यूनिसेलुलर यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी is used in the brewing industry for the production of alcoholic drinks। इसलिए yeast को या Saccharomyces cerevisiae को हम brewers yeast भी बोलते हैं। So microbes, especially yeast, have been used for the production of beverages जैसे कि wine, whiskey, brandy and rum। तो ये अलग अलग जो टाइप की beverages हैं वो yeast के fermentation process से ही बनती हैं। You must have done in class 11th कि yeast anaerobic condition में alcoholic fermentation शो करता है, यानी ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला पायरुवेट एंटर करता है alcoholic fermentation में, जहाँ पायरुवेट is converted into ethanol and CO2। तो वो जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, इन बड़े बड़े वेसल्स जिसको फर्मेंटर्स कहते हैं उसमें माल्ट इज केप्ट। माल्ट जो है वो ड्राइड ग्रेन होता है, स्पेसिफिकली जो राइस, व्हीट। तो माल्टिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ ड्राइंग आउट दीज ग्रेन। ड्यूरिंग द माल्टिंग प्रोसेस स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है ग्रेन में, इसलिए उस ड्राइड ग्रेन को माल्ट कहा जाता है। अब माल्टेड ग्रेन को फर्मेंटर में अलॉन्ग विथ यीस्ट डाल दिया जाता है इन अ वैक्यूम और एनारोबिक कंडीशन। यीस्ट उस माल्ट पर फीड करता है बेटा, और उस दौरान इट विल डू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इथेनॉल वाला है, इसलिए वो रेस्पिरेशन के दौरान इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा और इसी प्रोसेस को इंडस्ट्रियल लेवल पर एक्सप्लॉइट किया जाता है टू प्रोड्यूस दीज टाइप ऑफ बेवरेजेस। सो the yeast Saccharomyces cerevisiae, which is also used for bread making, is used for fermenting the malted cereals। So malted cereal जो malting process से बनाए गए हैं, यानी cereals जिनको malting ड्राइंग किया गया है, and fruit juices to produce ethanol, और ये of course anaerobic condition में ही करना पड़ेगा। पर आपने एक चीज़ और उस चैप्टर में पढ़ी थी कि यीस्ट 13% अल्कोहल पर अपने आप को जो है किल हो जाता है, यानी 13% अल्कोहल प्रोडक्शन पर यीस्ट के लिए वो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन टॉक्सिक हो जाती है। सो द यीस्ट वुड गेट किल्ड। इसलिए हम नेचुरल जो ड्रिंक या बेवरेजेस यीस्ट की मदद से बना सकते हैं उसमें मैक्स 13% अल्कोहल हो सकता है। बट वी डू हैव बेवरेजेस इन द मार्केट जिनका अल्कोहलिक कंटेंट इससे बहुत ज़्यादा है, 13 से 70, 80, 90, राइट। तो ये जो अल्कोहलिक कंटेंट है बेवरेजेस में ये कैसे बढ़ाया गया, क्योंकि यीस्ट तो सिर्फ 13% तक ही बना सकती है। 13% के बाद दे पॉइजन देमसेल्फ ओनली टू डेथ। तो वो जो प्रोडक्शन जो बेवरेजेस हैं उसमें अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ाया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अब नीट में यही क्वेश्चन आएगा बेटा कि कौन सी ड्रिंक्स विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती हैं और कौन सी विद डिस्टिलेशन, जो आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। तो ये देखो माल्टेड ग्रेन, उसके साथ आप यीस्ट डालेंगे फर्मेंटर्स में और अल्कोहल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी विद और विदाउट डिस्टिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने जो अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोडक्शन किया है उसकी प्रोसेसिंग कैसे की है, विद या विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन वाली कौन कौन सी है, वाइन एंड बियर। इसको आप अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये आ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। सो वाइन एंड बियर आर टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिनके लिए आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं करना है।
पर जो आपका विस्की, ब्रांडी और रम है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। ठीक है, वो जो फर्मेंटेड ब्रॉथ आपका बन के आएगा उसका डिस्टिलेशन करना पड़ेगा इन केस ऑफ विस्की, ब्रांडी एंड रम, और इसलिए उनमें अल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। सो माइक्रोब्स का यूज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल लेवल पर। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ। सो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स हैं विच आर अगेंस्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म आप नहीं हैं बल्कि पैथोजन है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं इन किलिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन योर बॉडी। इन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी एक माइक्रोब से ही हुई। कैसे हुई वो अभी हम देखेंगे। So antibiotics, anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they mean against life. So they are against the life of the organism or pathogens that cause disease in the body. So antibiotics are produced by microbes and are regarded as one of the most significant discovery of 20th century. Statement based question में यही छोटे छोटे words वो change कर देंगे 20th century के जगह जैसे 19th century। तो आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी थी वो 20th century के अराउंड हुई थी और वो वहाँ उस टाइम की सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी बिकॉज it helped a lot of people in fighting against diseases. So ये बहुत important discovery है। अब जो ये डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की, यानी ऐसे केमिकल्स जो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन है, इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming was performing some other experiment, and during the course of his experiment he found certain chemicals being secreted out of microbes which helped in killing other microbes. तो वो एक्सीडेंटली या बाय चांस एक डिस्कवरी हुई, बट इट वाज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड दे कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। वो दूसरे माइक्रोब्स को मार सकते हैं। वी आर फेमिलियर विथ कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है टू बी डिस्कवर्ड। नाउ हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? एज आई टोल्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से चांस डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलिन का। कैसे? पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था ये भी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। ही वॉज परफॉर्मिंग सम अदर एक्सपेरिमेंट ऑन स्टेफाइलोकोकाई। उन्होंने एक कल्चर प्लेट लगाई बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस की, और एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद उस कल्चर प्लेट को वो सिंक में बिना वॉश करे ही भूल गए। कुछ टाइम बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने उस सिंक में वो कल्चर प्लेट को वॉश करने के लिए उठाया, तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ उनके प्लेट में फंजाई की ग्रोथ हुई है, एक मोल्ड ग्रो होने लग गया था क्योंकि वो अनवॉश थी, तो वहाँ पर एक मोल्ड ग्रो हुआ यानी फंजाई। अब जहाँ जहाँ वो मोल्ड था उसके आसपास स्टेफाइलोकोकस वाज अनेबल टू ग्रो। ठीक है, यहाँ पर आसपास स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है जहाँ जहाँ पे फंजाई थी, और बाकी तरफ स्टेफाइलोकोकस ग्रो हो रहा है। देन ही रिसर्च ऑन इट एंड ही फाउंड कि ये जो फंजाई है वो एक केमिकल बना रहा है। दैट केमिकल इज सिक्रीटेड आउटसाइड, और उस केमिकल की वजह से उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी दैट केमिकल हैज़ द पोटेंशियल टू किल द बैक्टीरिया नियर बाय। तो वहाँ से नाम पड़ा एंटीबायोटिक, बिकॉज दैट केमिकल वॉज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द माइक्रोब, दैट इज द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया in this case. Later on, he named this chemical as penicillin because the fungi that was growing here was Penicillium notatum.
उससे उन्होंने केमिकल का नाम क्या दिया? पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की जो इफेक्टिवनेस है या जो फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक की वो कैसे काम करती है, किस चीज़ को टारगेट करती है बैक्टीरिया पर, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं बता पाए। दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसकी फुल पोटेंशियल को डिस्कवर किया और बताया। Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold, that is a fungi, growing in one of his culture plate, जैसे मैंने आपको बताया। कल्चर प्लेट एक प्लेट होती है विद अ कल्चर मीडियम जिसमें आप डालते हो न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब अराउंड विच स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो। तो उन्होंने देखा जहाँ ये मोल्ड ग्रो हो रहा है उसके आसपास स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं हो पा रहा है। He found that it was due to a chemical produced by the mold। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मोल्ड, वो फंजाई एक केमिकल बना रही है। He named it as penicillin after the name of the mold Penicillium notatum as I explained it to you। So ये देखिए उनकी कल्चर प्लेट, उसमें ही ऑब्जर्व्ड द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन was established by the efforts of Ernest Chain and Howard Florey। तो जो पोटेंशियल थी पेनिसिलिन की वो एक एंटीबायोटिक की तरह कैसे काम करती है, क्या टारगेट करती है, वो किसने बताया? अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने। आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल को टारगेट करती है। अब ये अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी हैं, तीनों को ही फिर नोबेल प्राइज मिला 1945 में। दिस एंटीबायोटिक्स was extensively used to treat American soldier wounded during World War II। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये एंटीबायोटिक बहुत काम आई ट्रीटमेंट में। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी were awarded Nobel Prize in 1945 for this discovery। With year आपको याद रखना पड़ेगा कि कब तीनों को नोबेल प्राइज मिला। So after penicillin, several other antibiotics were also purified from other microbes जैसे कि नियोमाइसिन। ये सारी एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे डिस्कवर हो गई। Antibiotics have greatly improved to treat many deadly diseases such as plague। ये आपकी बुक की लाइन है, पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डिजीजेस को ट्रीट करने में एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है। तो प्लाग है, वूपिंग कफ है जिसको काली खांसी कहते हैं, देन डिप्थीरिया, गलघोटू एंड लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। ठीक है, दिस इज Today we cannot imagine our world without antibiotics क्योंकि antibiotics कितने सारे disease treatment में काम आता है and therefore it is considered a very important discovery। Apart from this, microbes are also used in the production of many chemicals, enzyme and other bioactive मॉलिक्यूल्स। तो अब हम देखते हैं कौन से केमिकल्स, एंजाइम या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स एंड एंजाइम। तो जो माइक्रोब्स है वो इनके प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ देम आर, तो यहाँ पर एक टेबल आपको बना के दिखा दी है मैंने, आप भी इसको टेबल फॉर्म में बना लीजिए एंड देन कीप रिवाइजिंग दिस टेबल। यू डोंट हैव टू रीड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द बुक द पैराग्राफ्स। यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, एक तरफ आप नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखिए, फिर टाइप ऑफ माइक्रोब एंड द प्रोडक्ट। तो ये कुछ एसिड्स हैं बेसिकली, अभी तो मैं एसिड्स बता रही हूँ जो डिफरेंट माइक्रोब से इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाए जाते हैं और फिर उनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में। जैसे एस्परजिलस नाइगर विच इज़ अ फंजाई, कौन सी क्लास को बिलोंग करती है? एस्कोमाइसिटी। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप हाउस होल्ड वर्क में भी यूज़ करते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई, इट्स अ बैक्टीरियम विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विनेगर। ठीक है, विनेगर कितने सारे फूड में यूज़ किया जाता है।
Clostridium butylicum, it's again a bacteria which is used in the production of butyric acid. Then lactobacillus bacterium, जिसके production से lactic acid बनाया जाता है, which is important for the gut. Then yeast Saccharomyces is used for the production of ethanol on commercial level, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं. The microbes are also used for the production of many enzymes as well. So बहुत सारी enzymes हैं जो microbes की मदद से बनाई जाती है. अब कौन कौन सी enzymes हैं देखते हैं. सबसे पहले है lipases, जिसके भी आगे एज वर्ड लग जाए वो एंजाइम होती है. सो लाइपेज आर लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये जो है डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में, दैट हेल्प इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन्स इन द लॉन्ड्री. जो आप डिटर्जेंट्स डाल के ऑयल्स वगैरह के निशान हटा पाते हो ना अपने कपड़ों से, वो किसकी वजह से है? क्योंकि इन डिटर्जेंट्स के अंदर लाइपेज एंजाइम है जिसको कमर्शियली लार्ज स्केल पर माइक्रोब्स की मदद से ग्रो किया जाता है, बनाया जाता है. फिर इसके बाद है बॉटल्ड फ्रूट जूसेस. जो बॉटल फ्रूट जूसेस हैं उनको, वो अगर आप देखें घर में जो आप जूस बनाते हैं खुद से रॉ फ्रूट्स लेकर, वो बहुत फाइब्रस होता है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं. बट जो बाहर मार्केट में आपको टेट्रा पैक्स या बॉटल्स में जूसेस मिलते हैं, दे आर वेरी क्लियर. सो जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनकी क्लियरिंग की जाती है बाय यूजिंग एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस. सो पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो हैं वो माइक्रोब के प्रोडक्शन से बनाई जाती है और उनको क्लियर जूसेस बनाने में यूज़ किया जाता है. बॉटल फ्रूट जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस. स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी एक एंजाइम है. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ. सो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एन एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये जो एंजाइम है दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द क्लॉट. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉट बस्टर. अब क्लॉट्स विच आर स्पेसिफिकली क्रिएटेड आफ्टर सर्टेन सर्जरीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह के बाद जब क्लॉटिंग हो जाती है कहीं कहीं जगहों पर ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है जो उन क्लॉट्स के रिमूवल में काम आता है. और स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया कैसे जाता है इंडस्ट्री में? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है. तो ये एक क्लॉट बस्टर है स्ट्रेप्टोकाइनेज. ये भी आपको आ सकता है. एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जनरली मैच द फॉलोइंग में होंगे ताकि बहुत सारे एस्पेक्ट एक साथ कवर हो जाए. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज भी होगा, भी साइक्लोस्पोरिन करेंगे वो भी, ताकि एक ही मैच में आपकी पूरी नॉलेज टेस्ट हो जाए. तो इट इज़ एन ईजी चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी बोला, साइक्लोस्पोरिन ए. ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स है. मतलब जब हमारी बॉडी में कोई भी ट्रांसप्लांट होता है ना, हम किसी और से ऑर्गन लेते हैं, इवन इफ वी डू मैक्सिमम मैचिंग, फिर भी हमारी बॉडी एक फॉरेन ऑर्गन को रिजेक्ट करती है. And the immunity that is involved in rejecting the organ is cell mediated immunity. The cells involved are T cells, T lymphocyte. इसलिए नियर मैचिंग के बाद भी पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स खाने पड़ते हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें, शांत करें, ताकि वो ऑर्गन के अगेंस्ट रिएक्ट ना करें. तो जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो भी एक क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है यूजिंग दी फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिटी. 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई की क्लासेस है ना,
उसमें आपने किया है ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटी में. सो द सेम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, which is an immunosuppressive agent that is used in organ transplant patients. Then another type of molecules which are produced by microbes are statins. Statins एक तरीके के कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं. तो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल द मेडिसिन्स यूज्ड फॉर लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी. अगर आपके घर में कोई यूज़ करता है तो उनकी मेडिसिन्स के पीछे देखना स्टैटिन्स लिखा होगा. ये जो स्टैटिन्स हैं विच आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अगेन अ यूनिसेलुलर यीस्ट कॉल्ड मोनास्कस परप्यूरस. तो मोनास्कस परप्यूरस is used for the production of statins. Statins act as competitive inhibitor. अब ये जो statins है ये काम कैसे करते हैं? तो statins जो हैं जब हम ये खाते हैं मेडिसिन, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसकी एक मेन एंजाइम होती है जिससे ये compete करता है. अगर ये जाके हमारी एंजाइम पर बैठ गया तो जो एंजाइम है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को नहीं कर पाएगी. सो द मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिन इज दैट दे एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी. तो ये जो सारे अभी हमने किए ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे कि हमने क्या क्या किया, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, देन वी डिड स्टैटिन्स जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है. फिर हमने बात की थी इससे पहले आपके जो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि एक क्लॉट बस्टर था. बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस यूज़ होता है. डिटर्जेंट्स में लाइपेजेस यूज़ होते हैं. यहाँ तक जो हमने अभी किया वो इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स का यूज़ है. सो नाउ लेट्स चेक आवर नॉलेज कि हमें कितना समझ में आया और कितना याद हो पाया. साथ साथ मेरे आंसर बताने से पहले आपके आंसर्स आ जाने चाहिए. द लार्ज वेसल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स एट इंडस्ट्रियल लेवल, incubator, fermenters, autoclave, laminar airflow. So they are basically fermenters, राइट, जिसमें हम ग्रो करते हैं हमारे माइक्रोब्स को. ब्रूअर्स यीस्ट जो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होती है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. ठीक है. देन हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? एज आई टोल्ड, पेनिसिलिन एक चांस डिस्कवरी थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस. अब हमें बात करनी है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. येस, द सीवेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स का कितना इम्पॉर्टेंट यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. माइक्रोब्स सिर्फ डिजीज़ कॉज नहीं करते, बहुत सारे माइक्रोब्स आर हमारे एक तरीके से आप कर सकते हो फ्रेंड्स हैं जो हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, और अब हम जो देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम आ रहे हैं. सबसे पहले आई वॉन्टेड टू नो कि क्या आपको पता है कि सीवेज होता क्या है. अगर यू नो इट सो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो व्हाट इज सीवेज. नहीं पता है तो आई एम हेयर फॉर यू. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सीवेज होता क्या है. बेटा, सीवेज इज अ म्यूनिसिपल वेस्ट, द वेस्ट दैट इज जनरेटेड बाय अस एंड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज एज वेल. तो जो ये म्यूनिसिपल वेस्ट सीवेज है, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड दैट ऑर्गेनिक मैटर इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ लॉट ऑफ माइक्रोब्स. अगर सीवेज को हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डालेंगे दैट विल लीड टू पॉल्यूशन, और वो पॉल्यूटेड वाटर हमारे ही घरों में फिर वापस आएगा, राइट, विच कैन कॉज सो मैनी डिजीजेस. इसलिए सीवेज को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले उन्हें ट्रीट किया जाता है. जिन जगहों पर उनको ट्रीट करते हैं दे आर कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. बिग इंडस्ट्रीज ओनली यू कैन से, जहाँ पर सीवेज का ट्रीटमेंट माइक्रोब्स की मदद से करते हैं. We know that large quantity of waste water are generated every day in cities and towns. देखो, है ना, हम कितना वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं. A major component of this waste water is human excreta.
म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इसलिए मैंने ये बात बोली कि हमारे घरों से भी, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा इसका एक मेजर कंपोनेंट है, सीवर लाइंस जो होती हैं। It contain large amount of organic matter as I explained to you and even microbes, क्योंकि उन microbes के लिए ये जो सीवेज है वो तो source of nutrition है, but these microbes are pathogenic and they can cause many disease, है ना। कितने सारे माइक्रोब्स हैं, दे आर हैप्पी क्योंकि उनके लिए सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो न्यूट्रिशन है, सो दे विल ग्रो एंड दे कैन कॉज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन अस। Sewage hence therefore need to be treated before it is released in the water body. So sewage is treated in sewage treatment plants, STPs, to make it less polluting. तो ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी आप कह सकते हो एक तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट की इंडस्ट्रीज ही हैं। The treatment of wastewater is done by heterotrophic microbe। तो ये जो सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा है इन प्लांट्स में, वो किसकी मदद से हो रहा है? हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स की मदद से, जो कि नेचुरली इस सीवेज में पाए जाते हैं, उन्हीं की मदद से हम कर रहे हैं। क्योंकि और कैसे माइक्रोब्स हैं इन सीवेज में? क्योंकि सीवेज में जो मेन ऑर्गेनिक मैटर है वो उसके लिए न्यूट्रिशन का सोर्स है। This treatment is carried out in 2 stages। तो अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज का ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस में हो रहा है। पहला स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन किया जाता है टू रिमूव द लार्ज डेब्रीज एज वेल एज द स्मॉल पेबल्स of particles large and small from the sewage। और इस फिजिकल प्रोसेस में कौन से 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? जैसे मैंने आपको समझाया, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, राइट, जिससे हम लार्ज और स्मॉल पेबल्स को रिमूव कर सकते हैं। सो पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व्स अलाउइंग इट टू सेटल डाउन अनडिस्टर्ब्ड, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, फिर वो सेटल डाउन हो जाएगी जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी, और ऊपर एक एफ्लुएंट बचेगा सुपरनेटेंट, जिसको हम डीकैंट करके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। These particles are removed in stepwise manner। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज जो ऊपर तैर रही होती हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। बार बार फिल्ट्रेशन करके जो डेब्रीज हैं फ्लोटिंग वाली वो रिमूव होंगी। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम क्या हटाने वाले हैं? फ्लोटिंग डेब्रीज को। देन द ग्रिट विच इज द सॉइल एंड द स्मॉल पेबल्स। अब जो छोटे छोटे पेबल्स और सॉइल जिनको फिल्ट्रेशन से रिमूव करना डिफ़िकल्ट था क्योंकि उनका साइज फिल्ट्रेशन साइज स्पोर साइज से कम है, तो उसको कैसे हम रिमूव करेंगे? सेडिमेंटेशन से। दे आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। फ्लोटिंग डेब्रीज फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन से स्मॉल पेबल्स और सॉइल को रिमूव किया जाता है। All the solids, तो सेडिमेंटेशन में नाउ वी अलाउ इट टू सेटल डाउन अनडिस्टर्ब छोड़ो, तो उसमें क्या होगा? जितने भी सॉलिड्स हैं वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे नीचे, यानी आपके स्मॉल पेबल्स और सॉइल फॉर्मिंग दी स्लज। तो जो नीचे सेटल डाउन होगा दैट इज कॉल्ड दी स्लज। ठीक है, ये वाला पार्ट स्लज हो जाएगा एंड द सुपरनेटेंट विल बी कॉल्ड एज दी एफ्लुएंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो ऊपर जो रह जाएगा वो एफ्लुएंट, नीचे जो सेटल डाउन होगा जिसमें हमारे सॉइल और स्मॉल पेबल होने वाले हैं उसे कहेंगे प्राइमरी स्लज। द एफ्लुएंट, अब ये सुपरनेटेंट जैसे मैंने कहा इसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी उसमें माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, देखो ये जो अब स्लज हमारा बना प्राइमरी स्लज और एक प्राइमरी एफ्लुएंट, हमने एफ्लुएंट ले लिया है और उसे अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। The primary effluent is passed into large aeration tanks जिसमें एयर का फैसिलिटी होगा। ठीक है,
तो जो एरेशन टैंक्स हैं उसमें ये देखो, ये एरेशन टैंक है, इसमें एयर बबल्स होंगे। तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट है वो हम यहाँ डालेंगे और एरेशन किया जाएगा। एरेशन कैसे किया जाएगा? मैकेनिकली एजिटेट करके और एयर उसमें पंप की जाएगी। एयर की मदद से बहुत सारे हेट्रोट्रोफिक एरोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोब्स उसमें ग्रो करेंगे। This will allow vigorous growth of aerobic microbes into flocks. Flock एक mesh like network होता है फंजाई और बैक्टीरिया का। So flocks are masses of bacteria associated with fungal filament to form a mesh like या wire like network। ठीक है, अब ये जो फ्लॉक्स और माइक्रोब्स हैं, जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, ग्रो क्यों करेंगे इसमें? क्योंकि उस प्राइमरी एफ्लुएंट जो हमने एरेशन टैंक में डाला है दैट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और हमारे लिए वही ऑर्गेनिक मैटर पॉल्यूटेंट है विच इज़ मेजरली ह्यूमन एक्सक्रीटा, पर वो उन माइक्रोब्स, फंजाई और बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन का सोर्स है। तो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वो इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना मतलब यूजिंग इट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी इन माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा। जितना ऑक्सीजन उनको चाहिए टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर, उसे हम कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब सीवेज में माइक्रोब्स ने कितनी ऑक्सीजन की डिमांड की, 1 liter ऑफ पॉल्यूटिंग वाटर में माइक्रोब्स ने कितने ऑक्सीजन की डिमांड की टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। जैसे जैसे BOD लेवल रिड्यूस होगा वैसे वैसे आपका जो वाटर है वो पॉल्यूशन फ्री होता जा रहा है, या इट इज़ बिकमिंग लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स कंज्यूम कर रहे हैं। While growing, these aerobic bacteria या microbes consume the major part of organic matter which is present in the effluent, और यही organic matter क्या है? उसके लिए न्यूट्रिशन का सोर्स और हमारे लिए पॉल्यूशन। This significantly reduces the biochemical oxygen demand of the effluent. The sewage water is treated till the BOD is reduced to the significant levels. अब BOD था क्या? BOD refers to the amount of oxygen, कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of the water were oxidized by the bacteria. बैक्टीरिया को 1 liter ऑफ वाटर में सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड लगेगी उसी को ही BOD लेवल्स कहा जाता है। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by the microbes in a sample of water. Therefore, BOD indirectly measures the organic matter present in the water. अगर मैं एक रिलेशनशिप लिखूं तो BOD क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, एंड वी कैन ऑल्सो से BOD is inversely proportional to the polluting। अगर मैं एक रिलेशनशिप बनाऊं तो BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, या फिर मैं कह सकती हूँ टू द पॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूटिंग लेवल्स। तो जितना ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा पॉल्यूटिंग लेवल है आपके वाटर का। जितना कम BOD उतना कम ऑर्गेनिक मैटर और उतना ही कम पॉल्यूटिंग आपका वाटर है। तो जब तक BOD लेवल बहुत कम नहीं हो जाता तब तक हम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे।
Then once the BOD of the water is reduced significantly, the effluent is passed to a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. अभी एरेशन टैंक था, अब वो एफ्लुएंट जिसमें BOD रिड्यूस हो चुका है उसे सेटलिंग टैंक में डालेंगे, फिर जो ये बैक्टीरिया और फ्लॉक्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. दिस सेडिमेंट जो अब नीचे सेटल डाउन होगा, जैसे हमने पहले प्राइमरी स्लज कहा था, अब हम उसे क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज. द ग्रेटर द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर द मोर पॉल्यूटिंग इट इज, जो मैं आपको रिलेशन बता चुकी हूँ. अब ये जो नीचे सेटल हुए आपके फ्लॉक्स वो हम यूज कर सकते हैं. अ पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू पंप इनटू द एरेशन टैंक. जो दूसरे एरेशन टैंक में ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि उस एरेशन टैंक में एयर के थ्रू पंप करके हम माइक्रोब की ग्रोथ करवा रहे थे. अगर हम यहाँ से ही थोड़ा सा डाल देंगे तो वो एक इनोक्यूलम का काम करेगा. जैसे कर्ड बनाने के लिए मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालते थे ना एज इनोक्यूलम विच इज़ अ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे ही ये एक्टिवेटेड स्लज सोर्स ऑफ बैक्टीरिया का काम करेगा. जो बाकी एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में बाय ट्रांसफरिंग इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे. उन एनारोबिक बैक्टीरिया का सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होंगे ये फ्लॉक्स, ये एरोबिक बैक्टीरिया, राइट. Here other kind of bacteria which are anaerobically growing digest the aerobic bacteria and fungi in the sludge. Anaerobic digestion के दौरान it will produce mixture of gases. So during the digestion bacteria produces a mixture of gases like methane, H2S and CO2. Methane being an important part, and this gas is called the biogas, जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल है, यूज़ किया जा सकता है फ्यूल या कुकिंग वगैरह में. बहुत सारे विलेजेस में बायोगैस प्लांट सेटअप किए जाते हैं जो बायोगैस यूज़ करते हैं. द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज़ जनरली रिलीज्ड. और जो वो ये तो एक्टिवेटेड स्लज की कहानी थी, जो ऊपर रह गया वो एफ्लुएंट है, वो अब क्योंकि फ्री ऑफ पॉल्यूशन है उसको अब हम रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पॉल्यूशन फ्री हो चुका है. सो माइक्रोब्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर अक्रॉस द ग्लोब डेली. This method has been practiced for more than a century now in almost all part of the world. However, the number of sewage plant have not increased enough. लेकिन जिस हिसाब से population grow कर रही है, जो waste production rate है वो बहुत ज़्यादा है compared to the number of STPs we have for the treatment. इसलिए आज हमारे पास इतना सीवेज है कि ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है, तो बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डाला जा रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने 2 प्लान इनिशिएट किए, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, टू सेव देम the major rivers of our country from pollution. In this process, in this plan, a large number of sewage treatment plants need to be built ताकि हम सीवेज को ट्रीट करके ही वाटर बॉडीज में डालें. Microbes can be used to remove toxic substances that can be accidentally released into the environment such as oil spills and all. तो बहुत सारे माइक्रोब्स बायो रेमिडिएशन में काम आते हैं, यानी पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए जो एक्सीडेंटली पानी में जा सकते हैं, जैसे कि ऑयल स्पिल्स वगैरह. Let's test our knowledge. Municipal waste water is called sewage. Very good. Then sewage is treated in sewage treatment plants. Easy. The sewage water is treated until dash is reduced, so it is BOD, biochemical oxygen demand. Now let's see the role of microbes in the production of biogas. एक हमने देखा कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट करते समय हमने एक्टिवेटेड स्लज को यूज़ किया टू फॉर्म बायोगैस. वो मेन एम नहीं था, मेन एम वॉज सीवेज ट्रीटमेंट, उसमें से हमने वो साथ में करवा लिया टू मेक एन एफिशिएंट यूज़ ऑफ माइक्रोब्स. अब
प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जो काफ़ी सारे विलेजेस में स्पेसिफिकली होता है, वहाँ पर ये जो बायोगैस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो किसकी वजह से चल रही है बेटा? माइक्रोब्स की वजह से. सो माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस बायोगैस. व्हाट इज बायोगैस? बायो वर्ड आया है मतलब लिविंग, gases, so it's a mixture of gases which is produced by living microbes, and the major component of biogas is methane, right? बायोगैस में सबसे इम्पॉर्टेंट गैस मीथेन होती है. इसके अलावा अदर गैसेस लाइक CO2, H2S होंगे. वो डिपेंड करेगा अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रोब बीइंग यूज्ड एंड द रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. So biogas is a mixture of gases, predominantly methane. जैसा मैंने आपको बोला कि main component methane होता है. So underline this. Produced by microbial activity, and this gas being inflammable can be used as fuel. Specifically villages में ये use की जाती है आज भी. Microbes produce different type of gaseous end product during growth and metabolism. So हम एक raw material डालेंगे जो या तो cattle dung होगा, domestic waste होगा, और जो फार्मिंग फील्ड से वेस्ट होगा वो डाल देंगे माइक्रोब्स के साथ. माइक्रोब्स इन वेस्ट पर फीड करेंगे एंड ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे विल बी प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान वो कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे. द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस विल डिपेंड अपॉन दी, जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रोब यूज्ड एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. तो जो आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ किए और जो माइक्रोब यूज़ किया उस पर डिपेंड करेगा कि आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होंगी. देन in the fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced is CO2. हमने ये सब देखा था. उसमें जो मेन गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या थी? CO2. बट देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो एनारोबिकली जब ग्रो करते हैं सेल्यूलोसिक मटेरियल पर, स्पेशली द प्लांट बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इंस्टेड ऑफ CO2. यहाँ पर जो CO2 प्रोडक्शन हो रहा था वो यीस्ट के एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से था. बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सर्टेन जो एनारोबिकली एक ऐसा मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाते हैं जिसमें मेन गैस या प्रीडोमिनेंट गैस क्या होती है? मीथेन अलॉन्ग विथ CO2 एंड वाटर. मीथेन का होना बायोगैस में ज़रूरी है. These bacteria which produces methane as the major gas, they are called methanogens. Methanogens biological classification में भी पढ़ा है. They are methanobacterium या methanogens जो हैं वो एक type of archaebacteria है. And one such common bacteria which is methanogen is methanobacterium. These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment. जब हमने anaerobic sludge digester में डाला था तो उसमें main component जो था वो methanobacterium था which feeds on the floc or the aerobic bacteria, and during that growth they were producing H2S methane. यानी वहाँ पे फिर हमने बायोगैस प्रोडक्शन भी साथ साथ करवा लिया था. These bacteria, methanogens, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, they are also found in ruminants. Ruminants वो होते हैं जैसे कि कैटल, जिराफ, बुफेलो, जिनके स्टमक में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, है ना? ओमैसम, एबोमैसम, रेटिकुलम एंड rumen. The largest compartment is called rumen, जहाँ पर मीथेनोजेंस रहते हैं. So even in certain animals which are called ruminants, the rumen is a habitat to many methanogens. इसलिए कैटल्स के डंग में जो होता है मिथानोबैक्टीरियम होते हैं. So it is a rich source of methanogen. These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of the cattle. ये रहा rumen वाला कंपार्टमेंट, तो उसमें भी ये प्रेजेंट है. A lot of cellulosic material present in the food of the cattle
इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द rumen. तो rumen में बहुत सारा सेल्यूलोसिक मटेरियल भी है और मीथेनोजेंस भी हैं. In the rumen, these bacteria help in the breakdown of the cellulose. तो वहाँ पर वो सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो कैटल के rumen के अंदर कोई बायोगैस प्रोडक्शन नहीं होगा. They are there helping in the breakdown of the cellulose. Thus, the excreta, which is the cattle dung, commonly called gobar, is rich in these bacteria. इसलिए जो कैटल का डंग होता है उसमें मीथेनोजेंस बहुत सारे होते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन में जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो कैटल डंग ही होता है, बिकॉज इट सर्व एज अ रिच सोर्स ऑफ methanobacteria. Is rich in these bacteria as we read. Dung can be then therefore used for the generation of बायोगैस. इसलिए बायोगैस का दूसरा नाम है गोबर गैस, क्योंकि गोबर विच इज द कैटल डंग, अ reservoir of methanobacterium, is used as a raw material for its production. ठीक है, तो ऐसे ये बनाई जाती है. अब व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं ना वो विलेजेस में ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि विलेजेस में फार्मिंग ज़्यादा है, कैटल ज़्यादा है, तो कैटल डंग भी वहाँ ज़्यादा अवेलेबल है जो एक रॉ मटेरियल के लिए की तरह यूज़ किया जा सकता है. द बायोगैस प्लांट जो लगाया जाता है दैट इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट टैंक. ठीक है, एक कॉन्क्रीट का टैंक बना होता है in which the bio waste are collected and a slurry of dung is fed. तो उसमें जितना भी बायो वेस्ट है वो डाल दिया जाता है और फिर कैटल डंग की एक स्लरी, एक काइंड ऑफ सेमी लिक्विड पेस्ट बना के उसके ऊपर डाला जाता है. अब ये जो स्लरी है कैटल डंग की उसमें बहुत सारे क्या होंगे? मिथानोबैक्टीरियम. वेरी गुड. फिर उस स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग प्लेट लगाएंगे. फ्लोटिंग प्लेट लगानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे जैसे बायोगैस का प्रोडक्शन होगा देयर विल बी एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम. तो अगर वो हमने रिजिड वाला लगाया कवर तो इट कैन इवन कॉज एक्सप्लोजन या प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. तो जो कवर होना चाहिए वो फ्लोटिंग होना चाहिए ताकि जैसे जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगी द कवर विल राइज. अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड over the slurry which keeps on rising as the gas is produced due to the microbial activity in the tank. ठीक है, तो अब इस टैंक का एक आपको लाइन डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. उसकी लेबलिंग भी इम्पॉर्टेंट है याद करनी, क्योंकि नीट में डायग्राम्स भी आते हैं लेबल करने के लिए. आपने इस साल भी देखा है डायग्राम्स आए हैं, तो आपको लेबलिंग्स भी क्लियरली आनी चाहिए. इसमें एक आउटलेट पाइप है जो कनेक्टेड होगा डिफरेंट हाउसेस से जहां पर बायोगैस सप्लाई की जाएगी. एक इनलेट पाइप है, ठीक है, अंदर आने वाला. एक डाइजेस्टर टैंक होगा. ये देखो ये इनलेट है. दिस इज द डाइजेस्टर टैंक जिसमें बायोगैस जो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो है और स्लरी ऑफ कैटल डंग है विच विल बी डाइजेस्टिंग द माइक्रोब इन द कैटल डंग विल बी डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर. एक गैस होल्डर है, जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी ये फ्लोटिंग कवर राइज होने लगेगा. द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू द नियर बाय हाउसेज. जैसे मैंने कहा जो आपका आउटलेट होता है वो हाउसेज में पाइपलाइंस में सप्लाई कर रहा है हाउसेज को गैस. ठीक है, द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. फिर वो जो काउ डंग की स्लरी डाली थी जैसे जैसे वो यूज अप होगी, जो उसमें बचा हुआ पार्ट होगा उसको भी बहुत एफिशिएंटली सस्टेनेबली यूज़ किया जा सकता है. वो जो स्पेंट पार्ट है उसको एज फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं इन द फील्ड. ठीक है, टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट. कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन द रूरल एरियाज. जैसे मैंने आपको कहा कि विलेजेस या रूरल एरियाज में कैटल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैटल डंग भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फार्मिंग उन्हीं एरियाज में होती है, इसलिए बायोगैस प्लांट भी वहीं लगाए जाते हैं. सो बायोगैस प्लांट आर ऑफन बिल्ड इन दी रूरल एरियाज.
ठीक है. द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड बाय द पीपल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग पर्पस के लिए. क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है. जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की वो डेवलप की इंडिया में किसके एफर्ट्स ने? दो बेसिकली आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्रीज है. एक है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI विच इज लोकेटेड एट पूसा रोड दिल्ली, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. इन दोनों के एफर्ट से ही इम्पोर्टेंट है इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. एंड बायोगैस इज सर्विंग a lot of importance in the village area specifically, जहाँ पर ये LPGs वगैरह नहीं पहुँच सकती, वो आज भी बायोगैस पर ही रिलायबल है फॉर देयर कुकिंग एंड लाइटनिंग पर्पस. तो माइक्रोब्स कितने यूजफुल है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. Now let's check our knowledge based on whatever we have studied. Methanogens are used in, अभी हमने बात की कि मीथेनोजेंस आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो आपके एक्टिवेटेड स्लज में भी थे, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, और बहुत सारे रूमिनेंट्स के रूमिन कंपार्टमेंट में भी होते हैं. तो मीथेनोजेंस जो है वो किस में यूज़ किए जाते हैं? बायोगैस प्रोडक्शन में. ठीक है, दे आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Methanobacterium is also present in, it is one of the genus of methanogen, so it is also present in the rumen of the cattles, one of the compartment of the stomach. Third question. Dung can be used for the generation of, जो cattle dung है वो किसके generation, किसके production में use होता है? As I have marked, biogas. Now let's study about microbes which are used as biocontrol agents. कैसे हम microbes को controlling agents की तरह use कर सकते हैं? किसके control के लिए? जैसे pest के control के लिए, है ना. तो हमें जो पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करके हम माइक्रोब्स भी यूज़ कर सकते हैं. जब हम केमिकल्स ना यूज़ करके कोई ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें तो उसे बायो कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं, कि कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ इन कंट्रोलिंग सर्टेन थिंग, जैसे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो बायोपेस्टिसाइड्स ऐसे. सो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स में सबसे पहले व्हाट इज बायो कंट्रोल? Biocontrol means using certain biological methods for controlling the plant and the pest disease. Now, the next concept of the chapter include, or the topic of chapter include, use of microbes as biocontrol agents. Now, what do we mean by biocontrol? बायोकंट्रोल का मतलब होता है बेटा यूजिंग सम बायोलॉजिकल वेज टू कंट्रोल द प्लांट डिजीजेस एज वेल एज द पेस्ट. जब हम कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज़ करें प्लांट के डिजीजेस को या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो उन्हें बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है. अभी जैसे प्लांट डिजीजेस या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ होता है? पेस्टिसाइड्स, है ना. अब पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हार्मफुल केमिकल्स हैं. स्टार्टिंग में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आई, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये था कि वो वेराइटीज़ को ग्रो करने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दीज पेस्टिसाइड्स, और ये भी सब चाहिए. बट विथ टाइम व्हाट हैपेंड कि ये जो केमिकल्स हैं ये पॉल्यूशन कॉज करने लग गए, वाटर का, सॉइल का पॉल्यूशन होने लगा. तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वीडीसाइड्स होते हैं, जो हम पेस्ट वीड्स को कंट्रोल करने के लिए फील्ड में यूज़ करते हैं, वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जो पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड्स हैं ये कोई स्पीशीज स्पेसिफिक है नहीं, यानी जिनको हम टारगेट कर रहे हैं मारने के लिए वो तो मर रहे हैं, ठीक है, बट इसके साथ साथ हमारी जो मेन क्रॉप है उसमें भी ये केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं विच वी आर अल्टीमेटली ईटिंग. तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट नीड आ गया है कि हम इन केमिकल्स को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हों
या फिर वी यूज बायो कंट्रोल एजेंट्स इन आवर फील्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज हार्मफुल केमिकल्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बायो कंट्रोल। जैसा आई एक्सप्लेन, बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, यानी कोई आप ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस एंड द पेस्ट को और प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जब हम कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। In modern society, these problems have been increased because of excessive use of chemicals like insecticides and pesticides. ये जो बायो कंट्रोल एजेंट पे स्विच होने की आज मजबूरी हो गई है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इतना केमिकल यूज़ हो रहा है, चाहे इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वीडिसाइड है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? तो these chemicals are very toxic and harmful to both humans and animals. They have been even polluting our environment, जैसे कि soil, ground water, यहाँ तक कि जो main crop है उसके भी edible parts जैसे कि fruits, vegetable में ये chemicals accumulate हो रहे हैं, which is ultimately entering our body and leading to so many diseases. Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds. Hence, there is a need कि हम एग्रीकल्चर को ऐसे करें कि हमें इन केमिकल्स पर डिपेंडेंस ख़त्म कर दें, है ना, हम इन केमिकल्स पे ज़्यादा डिपेंड ना हो। तो उसका ऑल्टरनेटिव है कि हम बायो कंट्रोल एजेंट्स लेके आए, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकें हमारी फील्ड में। In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation. अब ये जो पेस्ट का कंट्रोल है ये कैसे कर सकते हैं? उनके नेचुरल प्रेडेटर्स फील्ड में इंट्रोड्यूस करवा के। अगर मैं अपने पेस्ट का प्रेडेटर ले आऊँ तो प्रेडेटर उस पर डायरेक्टली फीड करेगा और मुझे केमिकल भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो जो बायो कंट्रोल मेथड है वो किस पर डिपेंडेंट है, या प्रिंसिपल उसका क्या है? नेचुरल प्रेडेशन मेथड पर, ठीक है। देन contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods, they kill both useful and harmful life form. उससे क्या होता था, जिससे हमें छुटकारा चाहिए, जो हमारा टारगेट पेस्ट है वो तो मर ही रहा है, साथ साथ कुछ यूजफुल फॉर्म्स भी मर रही हैं, उनके लिए भी हार्मफुल हो रहा है। दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन द फील्ड। तो जो हमारा कन्वेंशनल प्रैक्टिस है जहाँ केमिकल्स यूज़ होते हैं वो इतना अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकली हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जो माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे हैं वो इससे मारे जा रहे हैं। An important part of biological farming approach. तो अब हम किस पर शिफ्ट करना चाहते हैं? बायोलॉजिकल फार्मिंग टेक्निक्स पर, जहाँ पर हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ करने वाले हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? अगर आपको ये मेथड यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल पैटर्न्स को पढ़ना पड़ेगा। मुझे अपनी फील्ड में किसी पेस्ट को कंट्रोल करना है तो पहले मुझे उसके लाइफ साइकिल पैटर्न, उसके फीडिंग हैबिट्स सबको जानना पड़ेगा, तभी मैं जान पाऊंगी कि उसका नेचुरल प्रेडेटर कौन है, कौन उसको टारगेट कर सकता है, जिसको मुझे अपनी फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। सो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच का क्या है? दैट वी बिकम फेमिलियर विद वेरियस लाइफ फॉर्म्स। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो उस फील्ड में इनहिबिट करती हैं या उस फील्ड में आती हैं। प्रेडेटर्स एज वेल एज पेस्ट, जिसमें ना ही सिर्फ प्रेडेटर्स होंगे बल्कि पेस्ट। अगर मेरा एक फील्ड है, एक क्रॉप फील्ड है, वीट क्रॉप फील्ड है, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी फील्ड में अटैक करने आते कौन है ना, वहाँ पर कौन कौन विजिट कर पाते हैं, कौन से पेस्ट, कौन से प्रेडेटर। सो वी नीड टू बी फेमिलियर विद द लाइफ फॉर्म्स, ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल। फिर उनका लाइफ साइकिल पैटर्न क्या है, उनका फीडिंग पैटर्न क्या है, या कौन से हैबिटेट्स हैं जो वो प्रेफर करते हैं, तभी मैं अपनी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजाइज कर पाऊंगी, राइट। तो ये अप्रोच में आप बहुत सारे लाइफ पैटर्न्स भी
पढ़ेंगे, विच इज गुड, राइट. This will develop an appropriate, help to develop an appropriate method of biocontrol. तो बायोकंट्रोल मेथड को डिज़ाइन करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी फील्ड में कौन से पेस्ट, कौन से प्रेडेटर्स आते हैं, फिर उनका फीडिंग हैबिट्स, उनका लाइफ साइकिल, सब कुछ आपको एक समझना पड़ेगा, तभी आप वो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर पाएंगे. The very familiar beetle, so you need to learn certain example. इसका भी आप एक टेबल बना लीजिएगा. जैसे कुछ बायोकंट्रोल एजेंट दिए, जो ये ब्लैक और रेड मार्किंग वाली बीटल्स हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, है ना. ये दोनों ही यूज होते हैं टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली. तो आप जो लेडी बर्ड है और जो ड्रैगन फ्लाई है, ये यूज़ किया जा सकता है एफिड्स और मॉस्किटोज से छुटकारा पाने के लिए. सो बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट, जहाँ लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल कर सकता है और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज को कंट्रोल कर सकते हैं. और यही आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट किस पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है. देन एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट क्या है. तो जो हमारा एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यूज होता है टू कंट्रोल सर्टेन पेस्ट, वो है बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis. Bacillus thuringiensis during its life cycle is producing certain endospores, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं. सो दे हैव गॉट जीन्स जो कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाते हैं. ईच जीन इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पेस्ट और इंसेक्टिसाइड. ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स हैं, ये बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स में इनएक्टिव फॉर्म होती है. जब उसको एक पर्टिकुलर इंसेक्ट कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट. जब वो एक्टिव होता है तो वो बीटी टॉक्सिन, जिसे कहते हैं, बी फॉर बैसिलस एंड टी फॉर thuringiensis. तो ये जो बीटी प्रोटीन्स है या बीटी टॉक्सिन्स है, ये जब एक्टिवेट होते हैं इंसेक्ट के अंदर, तो ये उनके गट लाइनिंग के एपिथेलियम से बाइंड करके उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, लीडिंग टू देयर लाइसिस और डेथ. तो हमने इन्हीं बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स को एज बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ किया है फील्ड्स में. इन स्पोर्स को सैशेस की फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता है, जिसे फार्मर्स खरीदते हैं, पानी में डिसॉल्व करके स्प्रे कर देते हैं. सो सच बीटी toxins are used for the control of butterfly caterpillars. अब क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन बहुत काम आ रहे हैं और स्पेसिफिक भी हैं हर इंसेक्ट के लिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने क्या किया है, प्लांट को ही रेजिस्टेंट बना दिया. सो वी हैव मेड बीटी प्लांट्स, जिसके अंदर वो बीटी टॉक्सिन की जीन को डाल दिया गया है, स्पेसिफिक फॉर एवरी इंसेक्ट या पेस्ट, जो कि आइसोलेट की गई है फ्रॉम बीटी यानी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया. और ये चीज़ की गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जो आप बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन चैप्टर में भी सीखते हैं. पर यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वी आर यूजिंग द स्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ sachets. An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar, underline करो, is the bacterium Bacillus thuringiensis, जिसको often BT लिखा जाता है. ठीक है, तो ये Bacillus thuringiensis है जो इस caterpillar को kill कर सकता है. These are available in sachets as dry spores which are mixed with the water and sprayed onto the vulnerable plants, जिसमें ये बटरफ्लाइज के कैटरपिलर वगैरह इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रासिकास यानी ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर, एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दे आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा. In the gut of the larva, the toxin is released and the larva gets killed, क्योंकि टॉक्सिन उनकी गट के एपिथेलियम में पोर्स क्रिएट करने लगता है, जैसा मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया. ठीक है, तो ये जब खाएगा, आराम से खा रहा है, बट जब ये खा लेगा तो इट विल गेट किल्ड एंड नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट कम बैक टू द फील्ड.
The bacterial disease will kill the caterpillar, but it will leave other insects unharmed. क्यों? क्योंकि BT toxins are highly specific, which is a great advantage. Are highly specific. ठीक है, बहुत ज़्यादा specific होते हैं. देखो यहाँ पर कितने अच्छे से दिखाया है पूरा मैकेनिज्म कि ये जो बीटी टॉक्सिन है इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट की गट में वो एक्टिवेट हुआ, बीटी टॉक्सिन बाइंड किया उसके एपिथेलियल सेल से, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्स और पोर क्रिएट करने से लाइसिस हो गया विच अल्टीमेटली लेड टू दी death. Because of the development of methods of genetic engineering in the last decades, the scientists have introduced these Bacillus thuringiensis genes into the plant, and such plant have become resistant to the insect pest. Like we have made BT cotton, BT brinjal, right? So ऐसे बहुत सारे plant इन gene के insertion से बनाए गए हैं genetic engineering के through. It is being cultivated in some states of the country. Then next is a fungus which can be used as a biocontrol agent, which is Trichoderma, again belonging to Deuteromycete class. तो ट्राइकोडर्मा को यूज़ किया जाता है प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज फ्री लिविंग फंजाई है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो याद रखना है कि दे आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम. तो रूट्स के आसपास ये मिलती हैं. अब ये जो है इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स हैं ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस. सो बहुत सारे प्लांट के पैथोजेंस को कंट्रोल करने में ट्राइकोडर्मा काम आती है. दे आर रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स जो पैथोजेंस को किल कर सकते हैं. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स आर बैक्यूलोवायरसेस. Baculoviruses are pathogens that attack the insects and other arthropods. तो ये जो है दूसरे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड्स को अटैक कर सकते हैं, तो हम इनको एज बायो कंट्रोल एजेंट्स फील्ड में यूज़ कर रहे हैं. द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स बिलोंग टू द जीनस. सो सबसे फेमस जीनस कौन है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. बैक्यूलोवायरस का न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. व्हाट इज गुड अबाउट दीज बैक्यूलोवायरसेस, और वी कैन से एडवांटेज क्या है कि दे हैव अ narrow spectrum, or we can say application, मतलब they are very specific to certain insects only. These viruses are excellent candidates for species specific, जैसे BT toxin species specific है ऐसे ये viruses भी, and narrow spectrum insecticidal infection, right? बहुत ही narrow range of insecticides, insects को ये कंट्रोल कर सकते हैं. They have been shown to have no negative impact on plants, mammals, birds, fish, or even on the non-target insect, which is advantage. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हार्मफुल के साथ साथ कुछ यूजफुल ऑर्गेनिज्म भी किल हो जाते हैं, यहाँ पर वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है. This is specifically desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management. और ये एक एडवांटेज वाला फीचर क्यों है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो अच्छे इंसेक्ट्स हैं उनको हम कंजर्व करें, तो उस केस में ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स काफ़ी एडवांटेज में रहते हैं या अच्छे होते हैं, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही या पेस्ट को टारगेट कर सकते हैं और जो हमारे लिए यूज़फुल है उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. ठीक है, लेट्स चेक आवर नॉलेज. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant disease. ठीक है, बायोकंट्रोल एजेंट्स में हम प्लांट डिजीज को कंट्रोल कर पा रहे हैं. विच ऑफ द पैथोजन अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स? अभी हमने किया रिसेंटली बैक्यूलोवायरसेस. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द rumen of the cattle, they are methanogenic.
The type of gaseous end product during the growth and metabolism is due to, that depends on the microbe being used and the organic substance being used for the production. So option number 3. Now, use of microbes as biofertilizer. अगर हम माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं तो कुछ माइक्रोब्स फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं. फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं विच इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. तो हम केमिकल्स ना यूज़ करके अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज़ करें जो सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को अच्छा कर दे तो वो बायो कंट्रोल या तो वो बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं. Environmental pollution is the major cause of concern जो chemical fertilizer से भी हो रहा है. The use of chemical fertilizer to meet the ever increasing demand of agriculture produce is one of the important cause of air pollution or also the water pollution we can say. We have now realized there are problems associated with the overuse of chemical fertilizer. बहुत सारी problems हैं, not just the pollution of soil, water, but they are also posing threats to our health. क्योंकि वो fertilizers हमारे main crop में भी accumulate हो रहे हैं, edible part में जो हम consume करते हैं, तो हमारी health से भी issues हैं या concern है, बहुत सारी problem हो सकती है. Hence there is an immense pressure or need to switch to organic farming which will involve the use of biofertilizers which means organisms that can enrich, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे soil की nutrient quality को बढ़ा सके. ठीक है. So बहुत सारे biofertilizing agents हमारे पास हैं, कुछ आपको भी पता है जैसे कि राइजोबियम. इफ़ यू रिमेंबर राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सर है बट इट्स अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर जो लेग्यूम्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है. तो वो भी यूज़ हो सकता है एज बायो फर्टिलाइज़र क्योंकि वो सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा सकता है. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. Important line to underline. ये तीन ही हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स. वी स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. ये देखो ये पिंक कलर के जो नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूम्स की रूट में, जिसको जूम इन करके यहाँ दिखाया है, इसमें कौन होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम. Rhizobium is a bacteria that can fix atmospheric nitrogen into organic forms which can be used by the plant. अब rhizobium जो है वो ये symbiotically कर सकता है, मतलब फ्री लिविंग कंडीशन में ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता. It has to associate with the root of the legumes. Other bacteria that can fix atmospheric nitrogen while they are free living. ये बहुत important example है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. आर दे आस्किंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स और फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक में राइजोबियम आएगा और फ्री लिविंग में एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर, ये दोनों आएंगे. ठीक है. देन fungi are also known to form symbiotic association with the roots of the higher plant और ऐसे symbiotic association को mycorrhiza कहते हैं. Many members of अच्छा जो mycorrhiza में fungal partner होता है वो ascomycetes से ही होते हैं जनरली और उसमें सबसे फेमस जीनस है ग्लोमस. तो ये भी याद रखना है कि mycorrhiza में जो फंगल पार्टनर है वो कौन से जीनस को बिलोंग करता है? ग्लोमस जीनस को. The fungal symbiont in these association. अब mycorrhiza में क्या होता है? Fungi help करता है plant को by absorbing the water and the minerals from deep layers of the soil with the help of its hyphae, and it also help in absorption of phosphorus by the plant from the soil. ठीक है, so that plant को easily phosphorus available हो जाए.
प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन यानी माइकोराइजल एसोसिएशन फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ही नहीं बल्कि और भी कुछ एडवांटेज दिखाते हैं, जैसे दे आर रेजिस्टेंट टू सम रूट बॉर्न पैथोजेंस। माइकोराइजल एसोसिएशन की वजह से कुछ पैथोजेंस जो रूट पर अटैक करते हैं वो भी नहीं ग्रो कर पाते। दे आर टॉलरेंट टू सैलिनिटी एंड दी ड्रॉट। इवन माइकोराइजल एसोसिएशन सैलाइन कंडीशन और ड्रॉट कंडीशन से भी टॉलरेंस प्रोवाइड करवाता है। हेंस माइकोराइजा प्रमोट्स ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सभी एडवांटेज की वजह से फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन, रूट बॉर्न पैथोजन के से रेजिस्टेंस, सैलिनिटी और ड्रॉट से रेजिस्टेंस, प्लांट की क्या होगी, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी। इन दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस को एडवांटेज भी मिलेगा क्योंकि सिम्बायोसिस एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जहां दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। तो फंगस डिराइव शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। बदले में होस्ट प्लांट भी कुछ करके देगा तो वो उसको शुगर्स और नाइट्रोजन रिच कंपाउंड प्रोवाइड करता है। देन यू मस्ट हैव ऑल्सो रेड साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट्स ट्रू, बट सर्टेन साइनोबैक्टीरिया कैन ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि एनाबिना एंड नॉस्टॉक, और वो ये फिक्सेशन अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट में करते हैं। So cyanobacteria are autotrophic microbes widely found in the aquatic and terrestrial environment। ये लाइन आ सकती है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Many of them, not all but many, can even fix nitrogen, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, सारे मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। इन द पैडी फील्ड, राइस फील्ड में जो कुछ वाटर से मतलब वाटर में उसकी रूट्स होती हैं, तो उसमें साइनोबैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट, राइस फील्ड में साइनोबैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, जो एक फर्टिलाइजर का काम होता है। Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use them regularly in their field to replenish the soil nutrients and to reduce our dependence on the chemical fertilizers ताकि हम pollution से बच सके। Which bacteria serve as an important biofertilizer? So यहाँ पर सबसे important biofertilizer है cyanobacteria, option number 4. Plants having mycorrhizal association show what benefit? Absorption of phosphorus, resistant to root-borne pathogens, salinity के लिए tolerance. So all of the above will be your answer. So with this we come to the end of the chapter. I really hope by the end of the video you are confident about this chapter. You should not lose any marks from any question of this chapter because it's really scoring. Whatever question is asked, it's direct. Make the list as I told. If you really like my video, do comment, share and subscribe to our channel. Stay tuned for more videos, interesting videos from physics, chemistry and biology or mathematics subjects as well. Till then, keep smiling, stay positive, happy, bye.